Hello, good morning students. My name is Kinjal Patel and I am your English teacher. We were looking about one of the grammar topic and which is very important in your class, not only for 9th but also for 10th. Now in that grammar topic, it was titled Direct and Indirect Narration. In that lecture, we have also learned about the concept what is called direct speech and what is called indirect speech. Apart from that, we have also learned certain rules and regulations, the kinds of sentences where we need to change, how or what will be the changes we need to make while converting a direct narration into indirect narration. In that procession, let's move ahead. Now, yesterday we were discussing about there were three major changes to convert direct narration into indirect. यहाँ पे we have to look, हमें ध्यान देना पड़ेगा dear student कि I am just quickly revising, just focused, right? See, a person who are having there are two persons who are having a conversation, it is called direct speech, and the conversation is listened by someone else and being presented to other, then it will converted into indirect, right? Now to convert this direct conversation into indirect, we need to do certain changes. Those changes only you can understand when you can understand the कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो स्टेटमेंट होता है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एक होता है स्पीकर, दूसरा होता है लिसनर. इन बिटवीन दिस टू स्पीकर एंड लिसनर वी हैव रिपोर्टिंग वर्ब. नंबर 2, द कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास which will connect which will take the place of connector, right? Yeah, in which we can put the connector in place of those commas and inverted commas. Now the whole statement which is given into double inverted comma are known as reporting speech. In that case, we have discussed about two major part of the changes. एक होता है reporting verb के अंदर changes that we have learned in part 1, and the secondary change occurred in a connector. जहां पे दो स्टेटमेंट को कनेक्ट किया जाता है वो है कनेक्टिंग प्लेस. कनेक्टर के बारे में हमने यस्टरडे यानी हमारा जो भी पार्ट 1 था उसके अंदर हमने वो लर्न कर लिया है. नाउ वी हैव आल्सो लर्न अबाउट वेरियस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन विच वी नीड टू मेक अ सर्टेन चेंजेस अकॉर्डिंग टू आरएस. नाउ द थर्ड वन इज दैट तीसरा हमारा चेंजेस था, चेंजेस अकर इन आरएस. Sir, you have a question, my dear student. If in your mind, okay, what does it mean by R.S. R.S. का मीनिंग होता है रिपोर्टिंग स्पीच, जो कि आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दी जाती है. There are three major changes in RS. हम RS के अंदर there are three main changes we need to do at the time of converting direct paragraph into indirect or direct narration into indirect, right? तो what are those changes? वो changes कौन से हैं dear student? देखो आप, time word and place word, ये पहला चेंज है. रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते समय आप टाइमिंग वर्ड्स एंड प्लेस वर्ड को आपको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा. सेकेंडरी है प्रोनाउन के अंदर जो चेंजेस आएंगे, जो वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, राइट, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं. तो प्रोनाउन जहां पे होंगे उनमें कौन से चेंज आएंगे. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेंसेस. ये जो तीसरा वाला और बहुत मूल्यवान जो कि चेंज होने वाला है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, वो है टेंसेस के अंदर कौन से चेंज होंगे. विदाउट वेस्टिंग टाइम डियर स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट चेंजेस. टाइम वर्ड एंड प्लेस वर्ड के अंदर कौन कौन से चेंज होने वाले हैं. लेट्स टॉक अबाउट दैट. सी, I have already prepared a table that you have to also write down in your notebook as well. Okay, dear student, आपको ये याद भी करना पड़ेगा. You have to remember this one. Until and unless you are not supposed to revise this or remember this, you will not give your 100% in converting that direct narration into a indirect one. Say, understand it first. डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको मतलब जो भी आपका इन्वर्टेड कॉमा का स्टेटमेंट होगा
उसके अंदर मान लो कि आपको इनमें से कोई वर्ड दिया जाता है, तो एट द टाइम ऑफ कन्वर्टिंग दैट word into indirect, what will come, that I have mentioned word here, just focus it. If you are given now in a direct speech, अगर इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस के अंदर आपको कहीं ना कहीं नाम दिख जाता है, यहाँ पे जैसे ये इन्वर्टेड कॉमा है ना, देखो यहाँ पे फोकस इट, यहाँ पे नाम है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, तो ये वाला हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होगा। तो इसमें अगर नाम दिया है तो आपको उसका क्या करना है, देन करना पड़ेगा या फिर एट दैट टाइम करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक चलेगा। यू कैन यूज आइदर देन और एट दैट टाइम। नाउ इफ यू आर गिवन टुडे इन अ डायरेक्ट स्पीच, इन अ इन्वर्टेड कॉमा वाली जो भी फॉर्मेशन होगी उसमें अगर आपको टुडे दिया है तो आपको यस्टरडे या फिर दैट डे लिखना पड़ेगा, राइट। फिर अगर टुनाइट दिया है तो दैट नाइट या लास्ट नाइट आप यूज कर सकते हो। टुमारो दिया हो डायरेक्ट स्पीच के अंदर तो इनडायरेक्ट के अंदर द नेक्स्ट डे या तो फॉलोइंग डे आप लिख सकते हो, या फिर यस्टरडे दिया हो डायरेक्ट स्पीच के अंदर, यस्टरडे दिया हो तो आप द प्रीवियस डे यहाँ पे लगा सकते हो, देखो द प्रीवियस डे यू कैन राइट, राइट। मान लो कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर लास्ट नाइट लिखा है तो द प्रीवियस नाइट आएगा, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर मान लो कि दिस वीक है तो आपको दैट वीक या फिर लास्ट वीक आप लगा सकते हो। नेक्स्ट ईयर हो तो फिर द फॉलोइंग ईयर आप लगाओगे, एगो हो तो बिफोर लगाओगे, दिस हो तो दैट करोगे, हियर हो तो देयर करोगे। समझ में आ गया? अब ये जो चीजें है डियर स्टूडेंट कि जब आप डायरेक्ट स्पीच में इनमें से अगर कोई वर्ड दिया गया हो तो ठीक इसके सामने मैंने जो चेंजेस लिखे वो वर्ड आपको वहां पे लिखने पड़ेंगे। ओनली देन एंड देन यू विल बी मेटिंग द फर्स्ट रूल ऑफ द कन्वर्जेशन। यहाँ पे आरएस की कन्वर्जेशन का जो ये जो पहला पॉइंट है ना वो आप उसको मैच कर पाओगे। नाउ यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखनी है कि रिवर्स चेंज इज नेवर अकर। अगर ये दिया है तो फिर इसमें होगा सर? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको इतना याद करना है कि अगर ये दिया है तो ही आपको इसमें जाना है। अगर आपके इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस के अंदर इनमें से कोई दिया है तो यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंज। आपको वहां पे बिल्कुल चेंज नहीं करना है, जो भी वर्ड है वो वहां पे लिख दो आप, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंडरी चेंज दैट इज प्रोनाउन। सर प्रोनाउन के अंदर क्या चेंजेस होते हैं? एज यू नो माय डियर स्टूडेंट दैट व्हाट आर द प्रोनाउन? प्रोनाउन व्हिच रिप्लेस द नाउन। नाउन को जो रिप्लेस करते हैं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो देयर आर majorly three kinds of pronoun that we have already learned in lower level. Now see, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो सकते हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तीन पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर सिंगुलर प्लूरल, जिसको मैं आई और वी बोलता हूं। वी इज माई प्लूरल, आई इज माई सिंगुलर, तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा। मान लो कि आपका इन्वर्टेड कॉमा वाला जो सेंटेंस है जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं उसके अंदर आपको फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन दिए गए। सर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आई सिंगुलर के लिए और वी होता है प्लूरल के लिए। वी प्लूरल के लिए होता है और आई सिंगुलर के लिए होता है। तो उसके अंदर आपका जो स्पीकर होगा ना डायरेक्ट स्पीच का, डियर स्टूडेंट, द स्पीकर ऑफ अवर डायरेक्ट स्पीच, इन अकॉर्डिंग टू हिम और हर यू हैव टू चेंज इन फर्स्ट पर्सन। अगर पहले पर्सन का यानी फर्स्ट पर्सन का आपको कोई प्रोनाउन इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस में दिया जाता है तो उस प्रोनाउन के अंदर आप चेंज जो हमारा स्टेटमेंट का स्पीकर होगा उसके हिसाब से आप चेंज करोगे। नाउ सेकंड रूल इज इफ देयर इज अ सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सर सेकंड पर्सन प्रोनाउन को आप तो जानते ही हो क्या होता है? यस, यू, राइट। सिंगुलर और प्लूरल में एक ही यूज होता है। तो यहां पे अगर आपकी इन्वर्टेड कॉमा वाली फॉर्मेशन के अंदर आपको सेकंड पर्सन के प्रोनाउन दिए गए हैं तो इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द लिसनर ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का हमारा जो भी लिसनर होगा उसके हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है। और मान लो यहाँ पे ये मैंने देखा ना, देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लिसनर ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच यू हैव टू चेंज इट। लिसनर सेकंड पर्सन का। अब जो थर्ड पर्सन की बात आती है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, अगर आपके इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस के अंदर मान लो कि रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अंदर थर्ड पर्सन का सब कोई प्रोनाउन आता है तो क्या करना है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या क्या हो सकते हैं, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन एक तो हो गया ही, दूसरा हो गया शी और तीसरा हो गया इट। ये हो गया आपका सिंगुलर का। और प्लूरल के अंदर क्या आता है, दे। ठीक है ना, तो इनमें आपको कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि इट इज ऑलरेडी बीन नैरेटेड एज अ थर्ड पर्सन, वो पहले से ही थर्ड पर्सन पे नैरेट हुआ है। यहाँ पे तो वही हो रहा है। अब देखो जरा, जब दो बंदे बात कर रहे हैं, तीसरा सुनता है, तो तीसरा जब आगे वाले को बताएगा तो ये थर्ड पर्सन ही होगा ना, थर्ड पर्सन नरेशन होगा। तो इसमें यू आर नॉट अलाउड टू चेंज, यू आर नॉट अलाउड टू चेंज, यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ इज टेंसेस। टेंसेस में क्या क्या चेंज होंगे डियर स्टूडेंट, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, जरा ध्यान देना। यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़े एब्रिविएशन टाइप लिखे, शॉर्ट फॉर्म लिखे। लेटर ऑन आई विल लेट यू नो दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस वर्ड, राइट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड राइट इट प्रॉपर्ली इन योर नोटबुक। सो डियर जस्ट फोकस ऑन इट, इस पे आप जरा सा ध्यान देना। देखिए डायरेक्ट स्पीच में अगर मान लो कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है, ध्यान देना यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है, तो जब आप इनडायरेक्ट स्पीच करोगे, उसका इनडायरेक्ट स्पीच करोगे तब वो सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा। मतलब अगर आपको डायरेक्ट स्पीच के स्टेटमेंट के अंदर सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट बनेगा। अगर परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा, राइट। यहां पे याद रखो कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो इनडायरेक्ट के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। अगर मान लो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। ठीक है, आगे वाला अगर मान लो कि सिंपल पास्ट टेंस है, सर आपने ये तो पता है कि सिंपल प्रेजेंट हो तो सिंपल पास्ट करना है, लेकिन सिंपल पास्ट दिया हो तो क्या करना है, इफ यू आर गिवन सिंपल पास्ट टेंस इन अ रिपोर्टिंग स्पीच देन इट विल बी रिपोर्टेड एज पास्ट परफेक्ट टेंस। उसको आप परफेक्ट पास्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो ना। परफेक्ट जो आपका परफेक्शन होगा ना यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, अब उसके बाद का क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है आपका, कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। तो उसमें आप क्या करोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर दो। क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर दो। मतलब आपका ये भी कन्वर्टेशन कंप्लीट हो गया। सर आपने ये तो समझा दिया, वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस वन, बट व्हाट अबाउट इफ वी आर गिवन पास्ट परफेक्ट टेंस। सर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो कोई चेंज नहीं करना है, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया है तो भी कोई चेंज नहीं करना है, राइट। ये हमारे हो गए मेन जो टेंसेस है उसकी बात। अब मान लो कि फ्यूचर टेंस की अगर बात करें, सिंपल फ्यूचर हो और आपको विल दिया हो तो आपको क्या करना है, वुड कर देना है। मान लो कि आपको कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस जिसमें आप विल बी वाली जो फॉर्मेशन आती है, जैसे आई विल बी डूइंग दिस वन एट दिस टाइम टुमारो, राइट, आने वाले कल में इस टाइम पे मैं ये कर रहा हूँगा, अगर उसकी बात आती है तो विल बी, यहाँ पे विल बी की जगह पे आपको रखना है वुड बी कर देना है बस। यहाँ पे मान लो कि परफेक्ट फ्यूचर टेंस दिया हो जिसमें विल हैव आता है, विल हैव आता है तो आपको वुड हैव कर देना है। ठीक है, अगर मान लो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है जिसमें विल हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी लगता है तो इन दैट केस यू नीड टू पुट वुड हैव बीन, वुड हैव बीन, बस दैट इज ऑल यू नीड टू चेंज। नाउ
इफ यू आर बीन आस्क्ड द सेंटेंस यूजिंग कैन, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर कैन दिया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुड करना पड़ेगा। हैव टू दिया है तो हैड टू करना पड़ेगा। अब मस्ट और हैव टू दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं डियर स्टूडेंट, तो इसके लिए आप हैव टू ही यूज करोगे। मस्ट हो या फिर हैव टू हो, दोनों के लिए आपको हैव टू का इस्तेमाल करना है। मे दिया हो तो आप माइट कर दो। तो ये हो गए आपके टेंसेस चेंज। आई होप कि आपको ये सारी एप्लीकेशंस याद है। If it is not, then by pausing it, just clarify yourself and write it in a proper way, right? Properly आप इसको लिखना जरूर। Now, सर ये तो सारे चेंजेस हमने पढ़ा दिए कि भाई सर पहले चेंजेस होते हैं आपके आरवी के अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब जिसे बोलते हैं। फिर आपने पढ़ा है कनेक्टिंग प्लेस के अंदर चेंजेस, राइट? और आपने ये भी पढ़ाया कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस जो हमें करने होते हैं सर, लेकिन ऐसे भी क्या कोई स्टेटमेंट्स आएंगे जिसमें हमें चेंज नहीं करना है? यस डियर स्टूडेंट, ऐसे भी कुछ स्टेटमेंट्स है जहां पे हमें कोई चेंज नहीं करना होता है। जैसे अगर आपका आरवी, यहां पे ध्यान देना, आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको हम स्पीकर और लिसनर के बीच में रखते हैं, ठीक है ना। अगर हमारा आरवी सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर का हो, राइट, जिसमें हमने लिखा हो हाँ देयर यू आर, विल से या ऐसा कुछ हो, तो वहां पे या से वगैरह लिखा हो तो वहां पे हमें कोई चेंज नहीं करना होता है। वहां पे जो सेंटेंस हमें दिया गया है उसी फॉर्म में बाकी जो कनेक्टर वगैरह के चेंजेस होते हैं वो करके आपको वैसा का वैसा लिख लेना है, ठीक है। उसमें और दूसरा कोई चेंज नहीं आएगा आपके आरएस के स्टेटमेंट के अंदर। और दूसरा, मान लो कि आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट दिया गया है, जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, जिसको हमें रिपोर्टेड करना होता है, मतलब कन्वर्ट करना होता है, ऐसे स्टेटमेंट में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट वगैरह दर्शाई गई हो, शोज फैक्ट्स और ट्रूथ, अगर कोई फैक्ट्स या ट्रूथ बताया गया तो उसमें भी यू आर नॉट सपोज टू मेक चेंज, राइट? यू आर नॉट अलाउड टू डू चेंजेस, आप वहां पे भी चेंज नहीं करोगे, ठीक है ना। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अब आ गई है। आई होप यू हैव जस्ट ब्रश अप योर टेक्निकल नॉलेज अबाउट हाउ टू कन्वर्ट द डायरेक्ट स्टेटमेंट्स इनटू इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट। नाउ लेट्स लर्न थ्रू द मीडियम ऑफ वन एग्जाम्पल। हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं उन सभी रूल्स का वी आर गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर। हमें अप्लाई भी करना है, देख लेते हैं चलो क्या होता है। देखो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, आप उसको जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। सर यहाँ पे एस जो होगा वो आपका प्रेजेंट का होगा, यहाँ पे नाउ लिखा है तो इसलिए आप समझ सकते हो कि इट इज आपको लेना है। यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है। ये पहला स्टेटमेंट है जिसको हम बोलेंगे आरएस या रिपोर्टिंग स्पीच, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे, ठीक है। वी आर कॉलिंग इट रिपोर्टिंग स्पीच। नाउ सी, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। नंबर 1, एक्सक्लेम्ड द मैन। कोई एक बंदा है जो इसके जो भाव होते हैं ना, इमोशन होते हैं, वो इमोशन दर्शा रहा है। नाउ इट्स गेटिंग रियली बैड, ऐसे करके, जैसे वो नाखुश है, राइट, या फिर थोड़ा सा सैड है, निराश है, या इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। तो इस तरह से वो जेस्चराइज करता है। तो यहाँ पे आपको ये पढ़ने से ही मालूम पड़ जाता है कि इसका, अब याद करो वो वाला रूल जहां पे हमने एक्सक्लेम्ड वाला सीखा था कि भाई जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं तो कनेक्टर के तौर पे आपको एक्सक्लेम्ड लिखना है, एक्सक्लेम्ड लिखने के बाद विथ लिखना है, और जो भी हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होगा उसमें कौन सा, यस, कौन सी फीलिंग है वो ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे बैड यानी सैड फीलिंग है तो आपको थोड़ा सा सैडनेस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो एक्सक्लेम्ड विथ सैड, वो ऐसा वर्ड आप यूज कर सकते हो, ठीक है।
आप ये समझना जरा ध्यान से, विथ नहीं लिखोगे और डायरेक्ट सैडली लिख दोगे तभी भी चलेगा, लेकिन वो इमोशन पकड़नी पड़ेगी। यू नीड टू कैच दैट इमोशन ऑफ द स्टेटमेंट। See, I have converted for you the very first statement. Understand it very properly. See, ध्यान देना इसको। क्या हमने किया है कि the man exclaimed, ये मेरा स्पीकर है, देखो the man exclaimed the man, तो ये मेरा स्पीकर हुआ क्योंकि ये वाला बंदा है स्टेटमेंट बोल रहा है। तो हमने लिखा कि the man exclaimed, अब देखो मैंने बोला था ना कि ये इमोशन कौन सी है, सैड वाली, तो लिखा सैडली। द मैन एक्सलेम्ड सैडली, बहुत निराशा से वो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? दैट दिस इज माई कनेक्टर, ये मेरा कनेक्टर था। आप रूल बुक के अंदर आगे जाके पार्ट 1 में देख लो, आपने वहां पे एक्सलेम्ड वाली जहां पे फॉर्मेशन होगी वहां पे कनेक्टर का जो कॉलम होगा वहां पे आपने लिखा था दैट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने दैट लिख दिया, ठीक है। अब क्या होता है, इट यानी ये थर्ड पर्सन है, ये प्रोनाउन है। मैंने बोला था आपको, अभी बोला, क्या बोला कि थर्ड पर्सन के जो आएंगे, यहां पे हमने पढ़ा था इफ देयर इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन इन डायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट स्पीच है ना इन्वर्टेड कॉमा वाली, तो ये डायरेक्ट है, उसमें थर्ड पर्सन का इस्तेमाल हुआ है। तो आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू इज, if there is a third person pronoun used in a direct speech there should not be change, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो हमें it का it ही रखना है। we need to just carry this word as it is over here, जैसा था वैसा हमने लिख दिया, ठीक है सर, ये तो आपने कर दिया। yes we have understood. now sir what about was, आपने was कहां से लाया? as we have learned in this rule of tenses के रूल में हमने क्या पढ़ा था, if we are given a present continuous tense in the direct speech के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया हो तो it will be converted into a past continuous tense, वो past continuous tense के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखो it is really getting bad now था, तो हमने कर दिया it was really getting bad, यहां तक तो ठीक है सर। यहाँ पे नाउ लिखा है और आपने तो कैसे चेंज हुआ, अगेन माय डियर स्टूडेंट यू हैव टू कम ओवर हियर, टाइम वर्ड एंड प्लेस वर्ड के अंदर चेंजेस में देख लो। सबसे पहला हमारे पास एक वर्ड आया था नाउ, जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर था, उसका या तो आप क्या कर सकते हो, देन कर सकते हो या फिर एट दैट टाइम कर सकते हो। हमने यहाँ पे देन का इस्तेमाल किया है, सो आई हैव रिटन देन ओवर हियर। सर ये तो समझ में आ गया पूरा का पूरा। अब पहले स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं हो सकती है। देन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फिर से इन्वर्टेड कॉमा किया गया है और बोला गया है आई होप इट पासेस क्विकली। अब यहाँ पे ना ही लिसनर दिया है ना ही और दूसरा कोई स्पीकर दिया है, इसका मतलब आपको निकालना पड़ेगा कि दोनों के बीच में अगर एक ही कंबाइंड स्पीकर है तो यही वाला बंदा जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा था ना, अ पर्सन हु इज सेइंग द फर्स्ट स्टेटमेंट इज हिमसेल्फ, यस सेइंग द सेकंड स्टेटमेंट। तो यहां पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वही बंदा मतलब यही मैन इज डिलीवरिंग द सेकंड स्टेटमेंट एज वेल। तो आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको वहां पे दो चीजें आप कर सकते हो, या तो एंड एडेड लिख दो या फिर एंड करके पीछे वाले स्टेटमेंट को भी उसी पहले वाले स्टेटमेंट के साथ ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये आप यू कैन डू दैट। सी मैंने यहाँ पे एंड डाल दिया है, एंड से उसको कनेक्ट कर रहा हूं। अब एंड से कनेक्ट करने के बाद आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, मैंने आपको बोला था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हो, जब यहाँ पे ये रूल पढ़ रहे थे ना, इफ देयर इज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन डायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हैं, जिसमें मैंने आपको बोला था आई वी। अगर जो आई आता है तो यहाँ पे मैंने बोला था ना कि आपको इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर ऑफ डायरेक्ट स्पीच, स्पीकर ऑफ डायरेक्ट स्पीच।
तो यहाँ पे स्पीकर हमने किसको बनाया था, द मैन को। तो आई को जो चेंज करना है ना अकॉर्डिंग टू द मैन करना पड़ेगा। अब आई मैन है, एक ही है, तो आई का बन जाएगा ही। हमने क्या पुट ऑन किया, ही। अब ये कौन सा स्टेटमेंट है, आई होप इट पासिस क्विकली, सिंपल प्रेजेंट टेंस है माय डियर स्टूडेंट, यू कैन अंडरस्टैंड नाउ दिस वन। ये टेंस आपका होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो कन्वर्ट कर दो उसको किसमें, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यस यहाँ पे सिंपल पास्ट आई होप का हो गया ही होप्ड। अब दैट कंडीशन तो पुट ऑन करनी पड़ेगी ना, कनेक्टर तो डालना पड़ेगा। तो आपको कनेक्टर के तौर पे मैंने आपको बोला था क्या ऐड करना है, दैट। सिंपल स्टेटमेंट है, असर्टिव स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव है। अब पार्ट 1 के उस लिस्ट के अंदर आप देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा, पहले ही प्रकार का है। उसमें कनेक्टर था हमारा दैट, राइट, वी हैव पुट दैट ओवर देयर। नाउ आफ्टर पुटिंग दैट यू नीड टू कन्वर्ट दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस इनटू अ सिंपल पास्ट। तो इट पासिस का हो गया इट पास्ट क्विकली। यहां पे ये मेरा कन्वर्टेशन और कंप्लीट हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस होल थियरी। टुडे or the day after tomorrow, maybe if you just try to brush up within these 2 days or 3 days, you will learn automatically all the rules and very easily। आप ये जो एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे आपको बताया है सारे रूल्स के साथ, डियर स्टूडेंट, आपको उसको 1 2 3 या 4 दिन तक कंटिन्यूअसली उसको थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा, यस रीड करना पड़ेगा, दिमाग के अंदर इसको एक बार फिट कर दो आप। Then you will be master of converting direct speeches into indirect one. Thank you. Hello dear students, my name is Kinjal Patel and I am your English teacher, as you know. Now we were discussing about a grammar topic which is very important for your examinations, entitled as direct and indirect narration. Today we are going to learn topic and its practice, right, through the medium of examples. Up to now, dear student, I have explained to you what are the rules of direct and indirect speech. We have learned about the rules and the regulations and the words and the changes that are being necessary to convert the direct narration into indirect narration. In that procession, we just move further that today we are going to learn or look about more practice for class 10th English medium grammar, direct and indirect practice paragraph. Here I have mentioned one paragraph and I will explain you where the changes occurred and what kind of changes are there in conversion of indirect. And here are some of the exercise or some of the paragraph given for you to practice yourself. Do it yourself. ये आपको खुद करने हैं. By putting the rules with yourself, try to solve this out. Let's look about one of the paragraph that I have mentioned and converted into indirect one. This is for class 10th English medium. Okay, my dear student, यहाँ पे ध्यान देना आप. Let's begin the question. Question क्या है? Read it very carefully. आपको ये 2-3 चीजें हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें. कौन बोल रहा है, किसको कह रहा है, ये सारी चीजें अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व द नरेशन. ठीक है, आप यहाँ पे देखो, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crews. Now यहाँ पे
डियर स्टूडेंट आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा कन्वर्जेशन जो है वो एक ही बंदा बोल रहा है, बिकॉज देयर इजंट एनी साइन ऑफ लिसनर ऑन द अदर साइड। यहाँ पे लिसनर का कोई मतलब नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा जो है वो गॉड को बोल रहा है, राइट। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द हु इज स्पीकर एंड हु इज लिसनर ऑफ द स्टेटमेंट। Now let's try to crack whole the question or transform the question into an indirect narration. How it will be said? Now he, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि only one person is just addressing God, वो God को बोल रहा है, ठीक है ना। तो you have to write he as a speaker। यहाँ पे स्पीकर में एक ही बंदा है, आई जहां पे लिखा है वो एक ही बंदे के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसको ही करेंगे क्योंकि इट इज थर्ड पर्सन। जब कोई बंदा बोल रहा है, कोई सुन रहा है, उसको जब सुन के कोई चौथे वाले के साथ या पांचवें वाले के साथ उसको रिप्रेजेंट करेगा तब इनडायरेक्ट बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ही लिख दो ताकि वो थर्ड पर्सन बन जाए। ही टोल्ड, अब यहाँ पे ये सेंटेंस पढ़ना बिल्कुल फॉर्मल, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस लग रहा है। नाउ ओपन योर रूल बुक विथ इट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि असर्टिव या डिक्लेरेटिव, जो कि पहला पॉइंट था, उसमें अगर सेंटेंस हो तो क्या आएगा, तो आपको वहां पे मिलेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या आएगा, टोल्ड आएगा। तो हमने टोल्ड लिख लिया। अब किसको बोल रहा है, ये भाई ये तो बंदा बोल रहा है गॉड को। किसको बोल रहा है, गॉड को। तो अब यहाँ पे लिसनर हमें मिला है, तो इसलिए हमने सेड नहीं रखा, हमने क्या किया, टोल्ड कर दिया। तो ही टोल्ड गॉड, वो भगवान को बोल रहा है, तो ही टोल्ड गॉड। अगर सामने कोई गॉड या लिसनर नहीं होता तो सेड का सेड ही रहता, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। नाउ He told the God, अब ये सेंटेंस सिंपल है इसलिए हमने कनेक्टर क्या रखा है, that। फिर यहां से स्टेटमेंट आगे बढ़ना है, of the money that, of the money that। अब यहां पे मैंने आपको I have explained you कि अगर मेरे रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अंदर, मतलब द सेंटेंस कंटेंट इन्वर्टेड कॉमा आया विद इन द इन्वर्टेड कॉमा, तो उसके अंदर अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हैं, इफ इट कम्स अ फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द रूल दैट आई हैव मेंशन्ड यू, इट जस्ट रिफर ओनली द स्पीकर ऑफ अ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्पीकर ऑफ अ स्टेटमेंट कौन था, हिल। तो यहाँ पे जो पहला आया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, सिंगुलर है, तो वो ही के हिसाब से चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कर दिया है ही। अब सी, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, as we have also learned earlier in the part 2 that if there is a simple past tense given into inverted comma, you should convert that simple past statement into a perfect past। तो यहाँ पे I asked, it is simple present tense, let's turn it into a perfect past। had asked, I asked की जगह हमने कर दिया है had asked, he had asked for। ठीक, फर्स्ट पोर्शन इज कंप्लीटेड। नाउ उससे आगे वो बोला ओनली 70 pesos रीच्ड मी। अब यहाँ पे आप समझना कि रीच्ड है, आगे अगर सिंपल पास्ट था तो पीछे भी सिंपल पास्ट ही होगा। हमने अर्लियर रूल के अंदर पढ़ा था, कहां पे पढ़ा था, इन एरर डिटेक्शन, कि इफ माय फर्स्ट क्लॉज इज इन द सिंपल पास्ट देन सेकंड क्लॉज विल बी इन द पास्ट टेंस इटसेल्फ ओनली। तो यहाँ पे यही चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। आई आस्क्ड सिंपल पास्ट था, ये भी सिंपल पास्ट है, तो इसको अगर हमने परफेक्ट पास्ट में कन्वर्ट किया देन दिस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ परफेक्ट पास्ट। व्हिच वन, दिस वन शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ परफेक्ट पास्ट। तो हैड रीच्ड। अब यहाँ पे मी है, मी दिस इज बिलोंग टू द आई, मतलब ये आई के हिसाब से रखा गया था। तो अब हमने यहाँ पे ही लिखा है, तो ही के हिसाब से आपको यहाँ पे हिम डालना पड़ेगा। ठीक है, सो सिंपल डियर स्टूडेंट। नाउ उससे आगे सेंटेंस चल रहा है, सेंड मी द रेस्ट। अब यहाँ पे आपको ये सेंटेंस पढ़ के कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि ही इज जस्ट डूइंग अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट
टू गॉड, वो भगवान को। बट ऑब्वियसली माय डियर स्टूडेंट, वी आर नॉट अ काइंड ऑफ पीपल हु जस्ट ऑर्डर द गॉड दैट ओ गॉड गिव मी। हम ऐसा नहीं कर सकते। वी जस्ट यस वी रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे इमोशन ऑफ रिक्वेस्ट दिया है, ये रहा, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे बहुत जरूरत है इसकी, इसलिए मुझे थोड़ा और पैसा भेज दीजिएगा। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ही को रिफर कर दिया फिर से, जैसे हमने पहले स्टेटमेंट में किया था। ही देन रिक्वेस्टेड, आई हैव पुट रिक्वेस्टेड। अब आप पीछे जाओ रूल बुक में, इंपेरेटिव स्टेटमेंट, सजेशन हो तो सजेस्टेड लिखो, रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्ट लिखो, ऑर्डर हो तो ऑर्डर्ड लिखो, या कोई वार्निंग है तो थ्रेटन्ड या वार्न लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट लिखा है। किसको रिक्वेस्ट की जा रही है, यहाँ पे गॉड को रिक्वेस्ट की जा रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ही देन रिक्वेस्टेड गॉड, वो गॉड को रिक्वेस्ट करा है। नाउ अगेन जस्ट सिंक इनटू द रूल बुक कि कनेक्टर आएगा हमारा टू इफ माय स्टेटमेंट इज पॉजिटिव। यहाँ पे ये मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव दिख रहा है आपको, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट मच। तो ये तो पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पे कनेक्टर टू आएगा। अगर ये नेगेटिव होता तो नॉट टू आता। ठीक है, टू सेंड हिम, यहाँ पे मी है ना, मी, तो ये आई के हिसाब से चेंज हुआ था। तो अब हमने पहले अगर मी की जगह पे हिम लिखा है, तो दूसरी बार भी हम क्या लिखेंगे, हिम ही लिखेंगे। टू सेंड हिम द रेस्ट सिंस, अब यहाँ पे आई किसको रिफर कर रहा था, पहले आई ही को रिफर कर रहा था। तो यहाँ पे भी जो हमारा आई होगा ये भी रिफर करेगा ही को। तो यहाँ पे हम कर देंगे ही। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का दिख रहा है आपको, आई नीड इट सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल पास्ट टेंस। तो ही नीडेड कर दिया हमने, क्या कर दिया, ही नीडेड इट वेरी मच। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, ही नीडेड इट वेरी मच। यहाँ पे आई नीड की जगह पे नीडेड कर दिया, तो वो कंप्लीट हो गया। अब आगे वो क्या कर रहा है, आगे भी तो कुछ बोल रहा है, बट अभी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। द स्टेटमेंट इज नॉट येट कंप्लीटेड, ही इज स्टिल ऑन, अभी भी स्टेटमेंट आगे जा रहा है। तो क्या आएगा, देखो आगे, ही फर्दर इंस्ट्रक्टेड, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, डोंट सेंड इट टू थ्रू द मेल। आप ये समझ रहे हो ना, बट कंडीशन है, और वहां पे आपको एक इंस्ट्रक्शन जैसा स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई डोंट डू, ये ऐसा अगर हमें कोई देता है तो जनरली इंस्ट्रक्शंस होती है या सजेशंस होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप सजेशन भी कर सकते हो या फिर इंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। तो उसके हिसाब से आपको ये इमोशन पकड़ के चलिए। ही फर्दर इंस्ट्रक्टेड, हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखा है कि भाई ये वाला स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन है भगवान को। तो यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्टेड बना दिया, ये भी हमारा इंपेरेटिव ही बनेगा। ही फर्दर इंस्ट्रक्टेड गॉड। अब देखो यहाँ पे डोंट सेंड मी है, यहाँ पे डोंट है, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो मैंने आपको बोला था रूल बुक के हिसाब से कि इफ माय आरएस स्टेटमेंट ऑफ इंपेरेटिव फॉर्मेशन इज इन नेगेटिव, देन द कनेक्टर ऑफ दैट विल बी नॉट टू। तो यहाँ पे हमने क्या पुट आउट कर दिया है, नॉट टू। अब टू के बाद तो वर्ब हमारा रूट फॉर्म में ही आएगा, तो हमने सेंड का सेंड ही रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया। सेंड इट टू, अगेन मी है तो आगे मी का हिम हुआ, यहाँ पे भी मी का हिम हुआ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, मी का हिम ही होगा। चलो कर देते हैं, ये कर दिया हमने, हिम थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। अब ये तो कंप्लीट स्टेटमेंट जा ही रहा है, मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। अब उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है, ये सिंपल स्टेटमेंट है, आर प्रेजेंट, राइट। तो यहाँ पे प्रेजेंट का हम कर देंगे पास्ट, तो आर का बन गया वर्ब, अ बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आफ्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ पैराग्राफ यू हैव लर्न लॉट, राइट। नाउ on this learning, on the basis of the rules that we have already learned and this practice which is given over here, you have to practice yourself and you have to submit it to me. इसको आपको मुझे सबमिट करना है। थैंक यू।